Hello everyone, welcome to new video. Today we are going to discuss about classification of threatened species. Threatened, a very important concept and very important point, not even for your study but for your domestic nature that you are acquiring in your life, or the life that you are spent toward the nature. Okay, and what kind of a person, means you are always saying कि I don't do anything, ideally तो I don't do anything. We always said that I don't do anything, but the nature get threatened. I am not responsible for that, even though you can consider me as well, you as well and me as well, both of us, not even a single person, all over the person, just kind of a persons were there. Okay, let it be, we'll discuss it. But to start this point, I just wanted to tell you that please, this video lecture will be little bit, means increases, the strength of this video get increases. Why? So we are going to discuss it in detail. Okay, see this beta, students, I know that each and every person who always wanted to get an input only, don't wanted to give any output, any kind of output. See, why so I'm getting this, means why so I was always introducing this concept again and again. Why so beta? Because this is the last point of our chapter, environmental management. In that, a very important point, as per you have seen all the points, I was thinking that this is one of the best point that we have to take, and the part that we can conserve ourselves, that we can repair ourselves. You know, most of the things will not get repaired easily. I'll explain you. See this beta, classification of threatened species. थ्रेटन मीन्स व्हाट? क्या बोल सकते थ्रेटन को? हम लोग बोलते, देखो हमेशा बोलते बोलते हम लोग बोल जाते हैं कि उसने मुझे बहुत थ्रेटन किया है, परेशान किया है. सो द स्पीशीज गेट, मीन्स हम लोग बोल सकते उसको परेशान करने वाले. द स्पीशीज विल गेट थ्रेटन बाय द ह्यूमंस, not only nature, but the 99% the fault, if you are going to see, that is given by humans only and only humans. Strongly I commended that. 1% only, 0.1% also we can consider, 1% only was the responsible nature, that is flood, other reasons are there. But you know beta, classification of threatened species is why so these things were important to us. You know, as we see, देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा हिंदी में देखेंगे, हम लोग हमारे लैंग्वेज में थोड़ा सा से देख लेंगे इस पॉइंट को. एंडेंजर्ड स्पीशीज मीन्स व्हाट? जो विलुप्त होने के कगार पे हैं. ओके, जो मतलब होने के कगार पे ही, सम ऑफ देम ओनली लिव्स. एंडेंजर्ड स्पीशीज एग्जाम्पल्स वी कैन टेक हियर. लायन टेल मंकी जो है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि लायन टेल मंकी जो है इसका एग्जाम्पल है? फिर अदर थिंग्स. व्हाट इज मीन बाय इंडेंजर्ड स्पीशीज? आइदर नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइंड और देयर हैबिट इज श्रंक टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट इन नियर फर्दर. इफ कंजर्व measure are not implemented, they will get exist from the earth, are known as endangered species. The species which are get threatened, number of time they were get threatened because of human fault, just because of human fault. It is not like that ki only you are responsible for it or I am only responsible for it. We both are responsible for it. So that is why I am saying that the endangered species in that lion tail monkey, आपने देखा होगा lion tail monkey आज सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटरी फॉरेस्ट में हम लोगों को दिखाई देते हैं, हर जगह पे दिखाई नहीं देते हैं. क्यों ऐसे? क्योंकि इनके ऊपर जो है ह्यूमंस ने क्या किया है. फॉर एग्जाम्पल पहले कैसे होता था, अगर ये फॉरेस्ट है तो ये गांव होता था और ये सिटीज होते थे, तहसील्स, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह होते थे. आज हुआ क्या है, ये हो गए हैं सिटी, ये हो गए हैं गांव और ये हो गया है फॉरेस्ट. इस वजह से आजकल जंगलों से शेर निकल रहे, घरों में घुस रहे हैं, गांव में घुस रहे हैं. दिख रहे हो ना, न्यूज़ पे चल रहा है ना कि इसे ज़्यादातर करके चंद्रपुर साइड में आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले कैसे था, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन आज वो एरिया बहुत कम हो गया है. सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा है. ऑलवेज दे जस्ट वॉन्टेड टू शो दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट.
We are only the person that because of us only it get conserved, but it is not like that. It get affected by ourselves. You are saying कि we are the students, how we can impact this? देखो हम लोग तो बच्चे हैं ना, हम लोग तो स्टूडेंट्स है ना, हमने क्या इम्पैक्ट किया है? बेटा आप लोग जो पेपर यूज करते हो वो भी जंगल से आता है, मेड बाय ट्रीज. पेपर बनाने के लिए क्या करना पड़ा? पेड़ों को काटना पड़ा. आप बोलोगे सर फिर पढ़ना छोड़ दे क्या? नहीं बेटा, पढ़ना मत छोड़ो. You have to study whatever, up to what. Study don't have any limit. Education don't have any boundaries. Up to what you wanted to educate yourself, you can. But the problem is that one book that you are using, you know, I have seen lots of students were there. If 100-page notebook is there, no, they have only used 80 pages only. 20 pages get damaged just because of their doing their designing, doing several any other kind of a work they do on the pages. So that 20 waste pages for one student. For one student there was a 6 subjects, so which means there are 60 notebooks for homework and 60 notebook for class works. Means 60 pages for one person, 60 pages for 6 notebook is there, 6 subjects are there, so they have to use 12 notebooks. Same thing were repeated in the class tuitions also, 6 to 12 means 12 notebooks for class and 12 notebook for institution, if those students were go to the institute only. So the 20 pages are there. So how many 6 subjects are there? For one student it utilize 120 pages as a rough. For school work and for class work 120 pages. Isn't it? Isn't it? For one student only, which means 240 pages. Which means अगर 100 पेज का नोटबुक है, 150 पेजेस का भी नोटबुक अगर कंसिडर कर, 125 पेजेस का अगर नोटबुक कंसिडर कर लिया, 2 नोटबुक उसने खराब कर दिए एक बच्चे ने. एक क्लास में 80 बच्चे, 80 बच्चों ने मल्टीप्लाई बाय 80 बिकम्स 160 नोटबुक गेट डैमेज. और होता क्या है आपके नोटबुक डैमेज होने के बाद में? यू वांट अ क्लीन नोटबुक, यू ऑलवेज वांट अ क्लीन वन. वही से बेटा क्लीन वन यूटिलाइज करिए ना, उसको रिसाइकल होता है ना, वो रिसाइकल होने की वजह से जो आपको प्लेन एकदम व्हाइट कलर की शीट मिलती है उसके बजाय वो थोड़ा सा डल हो जाता है, थोड़ा सा डल होता है, ज्यादा डल नहीं होता है. जब उसको 10 टाइम्स रिसाइकल किया जाता है उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा डल हो जाता है. जो 10 रुपीज वाले जो रफ नोटबुक आप यूज करते हो ना बेटा, ये जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं ना, न्यूज़पेपर को बार बार रिसाइकल करने की वजह से वो उतने थ्रेटन हो जाता है. So we are also responsible na, students also responsible na. For 1 year only, I am just talking about 1 year only. 10 years you teach, 12 years you take the education, 12 years you are using, no doubt. Sometimes it is less, sometimes it is more, doesn't matter. In each semester you have used 2 to 3 notebook for one subject also. That is depend beta, but I have just taken a genuine example I have taken. So endangered species in which lion tail monkey is an example. Second one is rare species. Rare means what? Very rare, very few of them are live now, very few of them are now exist, very few of them. For example, we can see musk deer and red panda. Now panda, अगर आपको पता होगा, पांडा अगर आपने देखा होगा, it was a so cute animal, no doubt. एक बहुत छोटा सा जब होता है वो बहुत cute होता है. He do a cuteness. He was full of cuteness. Right now on the screen you are able to see the cuteness of panda, baby panda. So he was totally cute. He was so cute he was. So ये पांडा जो है, रेड पांडा जो है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है. अभी जो आपने पांडा देखा ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है रेड पांडा. सो ये रेड पांडा जो है ये रेयर स्पीशीज में है. रेयर स्पीशीज में क्यों है? क्योंकि इसके बहुत कम जो है एनिमल्स जो है, रेड पांडा जो है आज हमारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं. और अगर ये इनको कंजर्व नहीं किया गया, इसको कंजर्व नहीं किया गया, इसको कंजर्व नहीं किया, इन दोनों को हील अगर नहीं किया ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? एग्जिस्ट हो जाएंगे अर्थ से. हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी, न्यू जनरेशन जो होगा, इन दैट ओनली वी आर एबल टू शो देम कि सी बेटा लायंस आर लुक लाइक दैट, रेड pandas were look like that, deers are were look like that. That only we have to show in textbook only and notebook only. If we don't wanted to do these things, if we wanted to educate them by seeing own, so what we have to do is we have to be careful about it. Next बेटा threaten में ही जाते हैं. नेक्स्ट है vulnerable species. ये जो स्पीशीज होते हैं ना बेटा, इनकी कुछ एक प्रजाति मतलब एज कंपेयर टू रेयर स्पीशीज ये थोड़े से ज्यादा होते हैं. अगर रेयर स्पीशीज 2 है तो ये वहां पे 10 होंगे, बस इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है. इसमें कौन कौन जाता है? टाइगर एंड लायन. सो दैट्स द रीजन हमारे यहाँ पे जो
कंजर्वेटिव फेनोमेनन्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे टाइगर फॉरेस्ट जो है एस्टेब्लिश किए हैं, और उसके थ्रू हम लोग जो है टाइगर को प्रिजर्व करने का, या फिर वो सॉरी प्रिजर्व नहीं, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इन महाराष्ट्र वी हैव ताडोबा tiger conservatory, that if you wanted to see that, so please visit over there with your teachers or with your parents, with your any person who knows over this thing, so you have to go with them only. So right now so we have this conservatory, we have, because of that only we are able to see tigers over there. But what exactly happens if that conservatory not established by the government? We always said that this is the work of government. No better, it is our own responsibility that we have to be focused over here, that we have to give our attention towards here. So that is why. Second is beta indeterminate species giant squirrel, शेखरू. अगर आपको मालूम होगा तो महाराष्ट्र का जो है वो वन्यजीव कहा जाता है शेखरू को, बराबर. जाइंट स्क्विरल ये जो है इंडिटरमाइंड स्पीशीज में चला गया है. ये कंजर्व कर रहे हम लोग, नो प्रॉब्लम, इसको कंजर्व करना शुरू है. तो इसको कंजर्व करने के लिए क्या हुआ है मालूम है? देखिए 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग मनाते हैं. यू नो वेरी वेल, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू स्टूडेंट्स, दैट इज हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर डे के लिए हम लोग जाने चाहते हैं. इफ कंजर्वेटरी डे, बायोडाइवर्सिटी डे, उस दिन तो हम लोग बड़े करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को बचाओ. क्या करेंगे? मंत्री, मतलब सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, लोग आएंगे वहां पे, खड्डे खोदेंगे, प्लांट लगाएंगे, चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर प्लांट लगाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, प्लांट लगाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, प्लांट लगाएंगे, चले जाएंगे. 22 मई को ये सारी बातें रिपीट होंगी. प्लांट तो भरपूर लगाएंगे, आएंगे जाएंगे, प्लांट लगाएंगे, आएंगे जाएंगे, प्लांट लगाएंगे, आएंगे जाएंगे, यही करेंगे वो लोग. प्लांट तो लगाएंगे हर बार, लेकिन होगा क्या मालूम है? खड्डा एक ही रहेगा. यस, इट इज द ट्रूथ. आएंगे, खड्डा, प्लांट लगाएंगे, चले जाएंगे. नेक्स्ट ईयर आएंगे, प्लांट लगाएंगे. प्लांट तो means they has to plant the trees, but what exactly happens beta? They were always planting the tree, but the dig or that whatever the hole they have made to dig to plant the tree, that is always remains constant, that is always remains same. वो एक ही रहेगा. आओ, वही खड्डे को उखाड़ो, उसी में लगाओ, चले जाओ, वापस आओ, उसी खड्डे में लगाओ, चलो. अब आपको खुद को पता होना चाहिए कि इतने सारे अगर प्लांट लगाते हैं फिर भी हम लोग चिल्लाते क्यों है फॉरेस्ट जो है कम हो रहा है. क्यों? प्लांट तो लगा देते हैं, प्लांट लगाया बस खत्म हो गया, फिर उसको पानी देखने का नहीं, उसको ट्रीटमेंट है कि नहीं वो देखने का नहीं, कुछ भी नहीं. सिर्फ करेंगे क्या? प्लांट लगाया, मैंने प्लांट लगाया. ये फोटो खींच के लगाते हैं, इतने बड़े बड़े फोटो लगाते हैं. अरे भाई इतने प्लांट लगे तो गए कहाँ पे? सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू वन वर्क. क्या वर्क देना चाहता हूँ मैं? देखिए बच्चों, आपके घर में ना छोटा सा प्लांट होगा, आपके घर में कुछ भी होने दो. देखो क्योंकि नेक्स्ट ईयर से भले ही हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है मीन्स एजुकेशन जो है स्प्लिट अप होने वाला है, 3+, 5+ ऐसे पोर्शन में ये कंडक्ट होने वाला है. एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा एजुकेशन रहेगा जिसमें आपको ये सारी बातें सीखने को मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर अस. इट इज़ वेरी 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 गुड थिंग. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू वन थिंग. स्टूडेंट्स, एक काम करिए, आपके घर में कोई भी पुराना से पुराना डिब्बा, कनस्तर, टिन, प्लास्टिक बॉटल, कुछ भी नहीं हुआ तो डिस्पोजेबल ग्लास तो होता ही है. नहीं भी हुआ तो प्लास्टिक का डबड़ा तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा. ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं है. आप एक काम करिए, उस डबड़े के अंदर ना कोई भी रहो, ऐसे छोटा सा एक पॉट लीजिए, उसके नीचे ना छोटा सा खड्डा बना दीजिए. आपके पेरेंट्स की हेल्प से क्या करिए, आप एक छोटा सा खड्डा बना दीजिए, और उस खड्डे में क्या करिए, आप एक प्लांट को प्लांट कर दीजिए, मतलब उसमें एक प्लांट लगाइए. मैंने खुद ने ये एक किया है, मेरे पास एक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दैट हाउ आई हैव प्लांट दिस. सो व्हाट आई हैव एग्जैक्टली डू, आई एक्सप्लेन यू इन द लास्ट ऑफ द वीडियो. आई टेल यू हाउ आई एग्जैक्टली डू दिस थिंग्स. लेट इट बी बेटा. देखिए आपने क्या करना है, ये ऐसा पॉट लेना है, इसके नीचे बेस में एक छोटा सा डिग करना है, उसके अंदर क्या करना है, अपनी मिट्टी को डाल देना है, बहुत सारी मिट्टी को उसके अंदर डाल देना है, और उस मिट्टी के अंदर कोई भी सीडलिंग, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने यही सीडलिंग लेनी है, वही सीड, कोई भी सीड, कोई भी आपके घर में जो अवेलेबल है वो कोई भी ले लो आप. इवन तो आपके घर में कुछ भी अवेलेबल सीड्स एक भी अवेलेबल नहीं है, आप मूंग ले लो, मूंग, जो मूंग होते हैं ना वो इसमें डाल दो, कुछ भी डालो, कुछ भी करो, कोई भी सीड्स लगाओ आप. आजकल तो हमारे यहाँ पे जो है मैंगो का सीजन चालू है, तो आप मैंगो की सीडलिंग भी ड्राई करके इसके अंदर डाल सकते हो, कुछ भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने क्या करना है बच्चों, इसको ग्रो करना है और उसका फोटो क्लिक करना है.
and whenever you come to your school, you have to show to your teacher that teacher, I have done these things in the lockdown, in that pandemic situation, I done this thing. So आपको खुद को मालूम होगा, देखिए आप you might be feel that very excited कि every day it will be grows, little bit grow, it will little be grow, little be growth. So that is why it is so important, beta. So let it be, we can say over here. Next, so we'll come on the point first. See, 2nd May is World Biodiversity Day, and IUCN, International Union of Conservation Nature और Nature Conservation was मीन्स उसने क्या किया, एक रेड लिस्ट जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने जो स्पीशीज़ है जो डेंजर्ड जोन में है, उन डेंजर्ड जोन के स्पीशीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो है इस रेड लिस्ट को मतलब रेड लिस्ट को बनाया है. नाम के लिए रेड लिस्ट है, लेकिन ये पेजेस जो है पिंक कलर के बनते हैं. For your kind information, the pages were made by pink color. Okay, so they have published the species list, and in that देखिए ये हमारा दुर्भाग्य बोल सकते हो, भारत के नियर अबाउट 148 जो है इस रेड लिस्ट में शामिल हैं एनिमल्स across the India, not only means part of Maharashtra or everywhere else, but the across the India 148 जो एनिमल्स हैं इस लिस्ट में जारी किए गए, जिसमें से एक तो ये लायन टाइगर, लायन टेल मंकी, मोस्क डियर, शेखरू, ये तो हमारे महाराष्ट्र की एग्जाम्पल्स है. इवन दो स्पैरो ऑल्सो, आजकल आप लोग देख रहे हो हम लोग मोबाइल फ़ोन, दूरभाष, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स, वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स नाउ, तो इट इज़ अ नीड indeed. So because of that, using mobile phones, what exactly happens better? Because of using mobile phones, the sparrow get exist from here. पहले कैसे होता था, जिधर देखो उधर स्पैरो स्पैरो, आजकल दिखाई देते हैं कि हम लोगों को नहीं. कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि आने वाले 1-2 साल में ये वाले जो स्पैरो हैं इसमें चले जाएंगे, ये में और इसमें रेयर स्पीशीज़ में चले जाएंगे. इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि हमारे स्पैरोज जो है इस रेयर स्पीशीज़ में चले जाएंगे. आपको लगता होगा कि गए तो गए, क्या ऐसा नहीं है. इफ़ यू गिव एनीथिंग टू नेचर, नेचर गिव्स यू बैक. कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक. रिमेंबर दैट थिंग. इफ़ यू थ्रेटन द स्पीशीज इन द रेयर, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, ये आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा. स्पैरो कम हो गए, जो वर्म्स होंगे, वर्मी कल्चर जो है वो बढ़ता जाएगा, जिस वजह से जो है प्लांट जो है हमारे प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जिस वजह से धान बराबर से नहीं होगी. धान बराबर नहीं हुई, हम लोग खाएंगे क्या? तो हम लोग इफेक्ट होंगे डेफिनेटली. वी हैव टू पे. दैट कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक. दैट इज द डिफरेंट थिंग. बट लेट इट बी बेटा. सो हियर वी हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ threatened species. They are classified into 4 that you can see over here. You just have to mention this definitions, or you just have to mention this points in your notebook. Pause the video, write down all these things. And second important thing, what I have exactly done, I'll show you right now. So before that, I just wanted to tell you, if you like this phenomenon, so like, share and subscribe is there, let it be. But subscribe button is there, you have to press that. Why so? Because whenever I'll upload the video, you'll get the notification. If you see that in main channel, the videos are also there which are in 11th standard also and 12th standard also. To get that notification, you have to press the bell icon. Okay, bell icon and subscription button too. Whatever doubt you are having, you can ask me in the comment box. Okay, no problem. And I hope you understand this phenomenon. If you like this, so share, subscribe my channel to get the notification. I'll show you my plant, how I will project this plant. Okay, thank you. Student, as I can say you, see, देखिए मेरे पास ये एशियन पेंट्स का एक डब्बा था. मेरे घर पे पेंट हुआ था तो मैंने उसको बचा के रखा था. सो ये एशियन पेंट्स का डब्बा है. मैंने इसके नीचे लोहे की जो कील होती है उसको गर्म करके, देखिए ये छोटे छोटे मैंने इसके अंदर 5 होल किए. आप देख सकते हैं, ये ड्रेनेज होल इसको कहा जाता है. और इसके अंदर मैंने चीकू के सीडलिंग्स लगाई थी. मेरे पास चीकू, जो मौसम में अपने को चीकू मिलता है ना, वही बस चीकू लिया, उसको खाया, उसके अंदर का जो बीज निकला इस पॉट के अंदर नीचे से होल किया, उसके अंदर मिट्टी डाल दी और उस मिट्टी के अंदर ही मैंने क्या किया, उस सीड्स को लगा दिया. लगाया मतलब कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ऐसे सीड्स को डाल दिया और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, बस ख़त्म.
अच्छा, ये जो लीफ आया ना तो वो सीड्स के अंदर से आया, और अभी आप देख सकते हो ये दूसरा वाला जो थोड़ा सा हल्का सा भूरा भूरा दिख रहा है आपको, ये इसलिए क्योंकि ये अभी जस्ट निकला है इसके अंदर से। और ये जो सेकंड वाला जो बड़ा वाला ग्रीन कलर का देख रहे हो, उसके अंदर से सेकंड वाला पत्ता भी आना स्टार्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको करना है, किसी भी चीज़ के अंदर आप इसको ग्रो कर सकते हो। एंड मुझे इसके पिक भेजने हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस फेनोमेनन। इफ़ यू लाइक इट, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक